Hey guys, hi, good morning. I hope this video finds you in morning, which I don't, it will be good evening actually in that case. So guys, as you already know, we are doing the case studies questions, right? And this is the third video in the series. And today, once again, we are going to do two questions and these questions will be from genetics and respiration. ठीक है? So guys, कोशिश करो कि आप इन सारे questions को solve करो. Just don't watch the videos because if you just keep on doing that, what will happen is आपका स्किल इंप्रूवमेंट नहीं होगा. तो इसीलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड देन सॉल्व इट विथ मी, राइट? फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट और रॉन्ग. छोटा छोटा 6 questions would be there, 2 case studies से. Now let's first get the introductory slides in. So you already know आप ये सारे और पुराने और आने वाले वीडियोस को ट्रैकर से ट्रैक कर सकते हो. एंड द चैनल for Telegram where you can connect with me, Sona Singh Unacademy, where you can reach me. And obviously, if you have any doubts, go ahead there. Bugs Bounty क्या है? देखो, Bugs Bounty is if you find inappropriate content, आप मुझे बताओ कैसे नीचे नीचे फॉर्म का लिंक है. और obviously will reward you for doing that and will take care of the problem as well. Now, व्हाट आर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? देखो, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से आपको अनअकैडमी के बैच कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, यानी ऑर्गेनाइज तरीके से यू गेट टू स्टडी देयर. टॉप एडुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, फिर स्टडी मटेरियल्स. एंड इन केस यू मिस अ क्लास, डोंट वरी, इट विल स्टिल बी एबल टू हेल्प यू. प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगा. सो बेसिकली इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्टडी कोर्स दैट वी आर देयर फॉर, दैट विल बी देयर फॉर यू. अब लेना कैसे है? सबसे पहले यू नीड टू साइन इन द कैटेगरी आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन. इसका मतलब क्या है? आपकी बोर्ड्स और फाउंडेशन दोनों की तैयारी. देन यू हैव पिक अ बड़ा महीना, बिकॉज बड़ा महीना पिकिंग का मतलब है यू गेट a better price per month, that is only 722 rupees, and then add the code SONA05 which gets you an extra 10% off. What is iconic subscription? So iconic में प्लस के सारे benefits होते हैं. उसके अलावा you get personal mentor, live doubt solving, weekly reports and parent connect sessions as well. तरीका वही होगा, पहले कैटेगरी, दूसरा बड़ा महीना और तीसरा Sona 05 gets you an extra discount. Now if you are new to the platform, you are not sure right now, special classes आप पहले try कर सकते हैं which are completely free, real time होते हैं. You can ask questions using the tab, we have polls, you have leaderboards and all of that, right? Now what is Unacademy Prodigy? Depending upon the date you are watching, बेटा ये 23rd जनवरी से स्टार्ट हो चुका है. What does that mean? It's a scholarship test. Enrollment is completely free. Just you have to use the code SONA05. आपको अपना respective class, अपना respective date और आपका respective time slot choose करना है. And remember, the 20 lakh का college grant, that is on the tests attended on 29th and 13th February. You have various rank, allotted prizes, and you have different slabs based on your performance in the test itself. Also, for already existing subscribers, you can extend your plus or iconic subscriptions by an year or more and get extra 3 or 6 month subscription depending upon your plus or iconic subscription, right? Also, these are two amazing batches जो भी आए हैं. Premium batch is for grade 10 foundation term 2 and golden batch is for grade 9 foundation term 2, right? Okay, now that we are done with the introduction of the platform and its benefits, I think this is the time we go to our questions. And once again, as I always say, questions को देख के घबराओ मत. हमने genetics पढ़ा है, pedigrees भी पढ़ा है, will be able to solve these questions. Basic ideas के ऊपर ही questions आते हैं बेटा. Now, you already know the basics. I'll just introduce you to them. Squares मतलब males, circles मतलब females, color मतलब affected है. अब blue color मतलब hemophiliia है. Hemophilia is an X-linked disorder. ये इन्होंने already आपको बता दिया है. Chromosome X. And color blindness is also X-linked disorders. Both of them are X-linked, यानी their faulty alleles are found on X chromosome. हमने पढ़ा था there are 3 types of sex related inheritance stuff that we need to study. Sex linked, that means the faulty allele would be on one of the sex chromosomes X या Y. Then there is sex influenced, यानी
both might have the allele, both male or the female could have the allele, and compulsorily the faulty allele is on an autosome, non-sex chromosome, but it is expressed only in one of the sexes. Sex limited trait का मतलब हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें जो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टरिस्टिक का एक्सट्रीम होता है, मतलब इट विल नॉट एट ऑल बी फाउंड इन द अदर सेक्स। ये तीन होते हैं। अभी हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें दीज आर एक्स linked inheritance and both of them are recessive, यानी they would be only expressed in the homozygous state। बेसिक फंडा ये, ठीक है। अब देखो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पर्सन 2 इज अ कैरियर ऑफ बोथ डिसऑर्डर्स। पर्सन 2 को जो है वो दोनों के कैरियर्स हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले एलिमिनेट द मेल। व्हाई? क्योंकि मेल में इट्स इजी। मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। नाउ दिस मेल इज नॉट अफेक्टेड। इसका क्या मतलब है कि वाई का तो है ही नहीं क्रोमोसोम, वाई का पे तो अलील है ही नहीं, एक्स पे होता है। एंड अगर ये मेल अफेक्टेड नहीं है, इट इज नीदर कैरिंग हीमोफीलिया नीदर कैरिंग कलर ब्लाइंडनेस। ये आउट ऑफ द वे पहले चला गया। नाउ दिस मेल at best is carrying both hemophilia or it could also carry color blindness। अब देखो प्रोंगा है, अगर ये कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों कैरी कर रही होती तो वी हैव टू थिंक कि इसमें से जितने भी सन्स होते उन सब को दोनों ही होता, राइट। बट वही है कि मान लो अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्स क्रोमोसोम पे है तो कौन सा क्रोमोसोम आया यू डोंट नो। तो हम ये नहीं असर्टेन कर सकते कि दोनों कैरी कर रही हैं या नहीं, बट इतना असर्टेन कर सकते हैं कि मेल में जो भी आया, क्योंकि मेल क्या होता है एक्स वाई, वाई पापा से आया एक्स मम्मी से आया, तो इनके जो सेकेंड जनरेशन है उसमें मेल के पास जो भी ट्रेट है वो तो पक्का पक्की कैरी कर रहे हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस तो पक्का है, इसका पक्का नहीं है। पक्का नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, वी डोंट नो, वी डोंट से। सो कलर ब्लाइंडनेस इसके पास तो पक्का था। सो शी वॉज एक्स एक्स सी, एटलीस्ट वी नो फॉर दैट, ठीक है। अगर उनके पास एक्स सी था, बिल्कुल भी चांस है कि वो एक्स सी यहां भी आ सकता था, राइट। 50-50 चांस होता है एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम आने का, बट 50 चांस हर एक के लिए एप्लीकेबल है। हो सकता है इनके पास एक्स सी आ गया हो, वी डोंट नो फॉर श्योर, हमें पक्का पूरा पता नहीं है, बट बिल्कुल ये भी चांस है कि दूसरा भी आ गया होगा, वी डोंट नो, है ना। कोई दोनों में से कोई एक तो पक्का आया होगा, राइट। क्योंकि फादर इज गिविंग द एक्स क्रोमोसोम और दूसरा एक्स क्रोमोसोम इज परफेक्टली हेल्दी, तो एक तो पक्का आया है। अब जो भी आया है एक्स सी और एक्स एच, जो भी आया है वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि मदर से एक्स सी आया है या एक्स एच आया है, राइट, हमें नहीं पता। बट हमें क्या एक चीज पता है, वॉट डू वी नो, वन थिंग फॉर श्योर, इनका जो बेटा है ही हैज हीमोफीलिया, यानी एक्स एच। एक्स एच कहां से आ सकता है, मम्मी से ही आया होगा, क्योंकि अगर लड़कों थर्ड से आया होता तो थर्ड भी अफेक्टेड होता, थर्ड अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब इट हैज टू कम फ्रॉम द मम्मी। नाउ मम्मी से अगर एक्स एच आया है, वी आर श्योर ऑफ दैट, इसका मतलब वी कैन से कि दिस वॉज एक्स एक्स एच। मैं अननेसेसरी चीजों को मिटा दे रहा हूं ताकि हमारा क्लियर रहे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो सेकंड था वो एक्स एक्स एच था, right? And the reason that the second, right? The reason that the second is getting both of these is only जब वो होमोजाइगस स्टेट में होगा, होमोजाइगस स्टेट में होने के बाद ही होगा। तो ये पंगा पड़ गया। देखो पंगा क्यों पड़ गया, हमने बोला एक्स एक्स एच आया, क्यों बोला हमने एक्स एक्स एच आया, क्योंकि हीमोफीलिया यहां दिख रहा है हमें, बट पापा के पास नहीं दिख रहा। तो पापा के पास नहीं दिख रहा, फिर भी बेटे के पास है, और एक्स एच तो आया ही होगा क्योंकि हमें पता है कि इसके पास एक्स एच होने के भी चांसेस हैं, जस्ट बिकॉज आपको वो
अफेक्टेड फॉर्म में नहीं मिला, दैट डजंट मीन, है ना। ओके, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली, है ना, हमें नहीं पता। ओके, सो व्हाट कुड बी वन रीजन, राइट, व्हाट कुड बी वन रीजन कि ये मेल XH है, फादर इज नॉट अफेक्टेड, मदर इज अफेक्टेड, तो XH यहां आया होगा, तभी तो ये हमारा कंफर्म्ड है कि XH यहां आया है, और क्योंकि मेल में आया है तो ठीक है। दूसरा X क्या था हमें नहीं पता, बट क्योंकि ये XH एक तो पक्का आया था, और ये XH कहां से आया होगा, इसके पास से आया होगा, और दूसरा तो मेल से आया है, तो वी हैव टू बी श्योर लाइक कि X ही होगा, ठीक है। अब इसके पास XH है, बहुत अच्छी बात है। बोला गया है पर्सन का 2 इज अ कैरियर फॉर बोथ डिसऑर्डर्स। एक का तो हमने कंफर्म कर लिया कि पर्सन 2 इज डेफिनेटली कैरिंग XH, ये हमने कंफर्म कर लिया, बट क्या शी इज ऑल्सो कैरिंग XC, ये हमें नहीं पता। आगे देखते हैं। नाउ दिस पर्सन थर्ड मैरीज दिस पर्सन एंड दे हैव बोथ सन्स, जो है उनमें दोनों है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि फोर्थ के पास क्या क्या हो सकता है। द गाय इज अफेक्टेड, दैट मीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस इसके पास XC है, और गाइज डॉटर्स को एक क्रोमोसोम तो जरूर देते हैं, तो इसके पास XC होगा, ये तो पक्का है ना। हम कह सकते हैं कि इसके पास XC होगा, राइट, बट गाइज सन्स को X क्रोमोसोम नहीं देते। हमें पक्का है कि इसके पास 4 के पास XC होगा, क्यों? हाँ, हमें पक्का है कि इसके पास XC होगा, क्यों? क्योंकि फादर्स सन्स को क्या देते हैं, Y, राइट, फादर्स सन्स को Y देते हैं, ओके, फादर्स सन्स को Y क्रोमोसोम देते हैं, तो दिस गाय हैज X, राइट, तो वेट थोड़ा, सॉरी, थोड़ा पीछे जाओ, आई नो कंफ्यूजिंग है, रुको, सॉरी माय बैड, मैं गलत भावनाओं में बह गया। ओके, इसके पास XC होगा, बट वो XC यहां तो नहीं आ सकता, क्यों? फादर्स मेल्स को सिर्फ Y क्रोमोसोम देते हैं, राइट, तो इसके पास यहां से तो कुछ भी नहीं आया, बट यहां से कुछ आ सकता है, राइट, बट अगर यहां से कुछ आ सकता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, हमें उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, राइट, और ऐसा भी लग रहा है कि 2 का 4 के पास कोई और प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 के मदर फादर के पास कुछ नहीं है, सॉरी 4 के मदर फादर के पास कुछ नहीं है ना, 2 4 के मदर फादर के पास कुछ नहीं है, 4 के डॉटर के पास कुछ नहीं है, यानी मे बी इस साइड XC इज द ओनली पर्सन प्रॉब्लमैटिक अलील, बट XC पास ऑन ही नहीं हुआ, सिर्फ यहां जो भी होगा, अगर होगा तो वो पास ऑन हुआ है। पास ऑन नहीं होने के बावजूद सन में जो है आपका दोनों आ गया, यानी फादर ने तो कुछ पास ऑन ही नहीं किया, फादर तो वाई क्रोमोसोम पास ऑन करते हैं, एक्स क्रोमोसोम तो पास ऑन ही नहीं करते, यानी जो भी आया वो थर्ड से ही आया, राइट, जो भी आया है वो थर्ड से ही आया है, पॉसिबिलिटी, राइट। अब जो भी आया है अगर वो थर्ड से ही आया है, तो थर्ड को किससे किससे मिला होगा, एक फादर से एक मदर से, राइट, फादर तो कुछ दे नहीं सकते, अगर फादर देते तो पता चल जाता, तो बची मॉम, राइट, एंड मॉम इज 2, और हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि मॉम की मॉम के पास XC तो था, XH था या नहीं था, बस ये प्रूव करना बाकी था। अब वो कैसे करें? हमें दिख रहा है कि इस बंदे के पास XH तो है, राइट, कहीं ना कहीं से इसके पास से XH तो आया है, फादर से नहीं आ सकता, वी आर वेरी श्योर, तो आया होगा तो मदर से ही आया होगा, राइट, इतना तो पक्का है कि मदर से ही आया होगा, फादर से आ ही नहीं सकता। तो अगर मदर से आया है और अगर ये 2 का थर्ड के पास नहीं है, दैट मीन्स इट हैज टू कम फ्रॉम मॉम, दैट मीन्स 2 हैज टू हैव इवन द XH
पंगा। 2 के पास XH भी कहीं ना कहीं से तो था। आई नो आप बोलोगे सर 2 के पास XH कहां से आया, राइट, बट देखो हमने ये आउट रूल नहीं किया था कि X सेम क्रोमोसोम पे C और H नहीं है। पहले चीज आर्ग्यूमेंट, दिस इज ऑल प्योरली आर्ग्यूमेंट। हमने ये रूल नहीं किया था कि सेम क्रोमोसोम पे X और H है, हमने बस ये रूल किया था कि वी नो फॉर श्योर दैट पर्सन 2 का 1 डेफिनेटली हैज कलर ब्लाइंडनेस वाला क्रोमोसोम। हो सकता है कि सेम क्रोमोसोम पे XH भी हो, बट जब तक वो आपका सेम क्रोमोसोम पे हो, हमने ये बोला था कि सेम क्रोमोसोम पे हो, राइट, बट अगर सेम क्रोमोसोम पे होता तो ये भी अफेक्ट हो जाता, बट नहीं था, इसीलिए उसके पास तो नहीं है। इसके पास हो सकता है, यू हैव बोथ XH एंड XC। एंड आई नो द प्रोमिनेंट क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग इज कैसे, हम कैसे, जब इसके पास एक ही X क्रोमोसोम मॉम से आएगा तो XH और XC कैसे होगा? That is what is the next question about which we are going to do just right now, ठीक है, but let's first agree that person 2 is a carrier of both disease, क्योंकि अगर person 4 का 1 में है तो मदर से ही आ सकता है, बट अभी क्वेश्चन आता है कि कैसे कैसे है उसके पास दोनों, एंड द आंसर विल बी हिडन इन दिस क्वेश्चन। इफ 4 का 2 हैज अनबॉर्न, अभी तक वो उनका जन्म नहीं हुआ है, हैज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY and also has color blindness, then a non-disjunction must have taken place in the first meiotic division of the mother's egg cell. So now you are getting to the answer. अब आपके पास आंसर आ रहा है धीरे धीरे, द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 4 का 2 जो है अनबॉर्न चाइल्ड है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तो देन अ नॉन डिस्जंक्शन मस्ट हैव टेकन प्लेस इन द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ऑफ द मदर्स का एग सेल। ये रहा मदर का एग सेल, ठीक है, ये रहा मदर। अब देखो यहां पे अगर नॉन डिस्जंक्शन होता तो इसके पास एक तरफ XY आता, राइट, और एक तरफ से X आया होता, राइट, बट हमें यहाँ पिंक कलरेशन दिख रही है, दैट मीन्स somehow this person is getting both the problematic alleles. Now how could that person get both the problematic alleles? One reason is that third has XH, third has XC, और इसका नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से एक ही गैमीट के पास XH XC हुए, राइट, ओके, XH और XC हुए, उससे क्या होगा, दिस पर्सन हैज बोथ XH XC, राइट, और उनके पास क्लाइनफेल्टर्स भी है, ठीक है, और ओके यहाँ पे हमें सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस प्रूव करना था, हमें XH प्रूव नहीं करना, वी जस्ट हैव टू प्रूव कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ से तो Y आ ही गया, राइट, वहां से यहाँ से Y आ गया, यहाँ से कलर ब्लाइंडनेस लाना बहुत आसान है, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव कि इसके पास एक कलर ब्लाइंडनेस का तो है ही, राइट। तो मेटाफेज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आमने सामने होते हैं, राइट। सो लेट्स से कि देयर इज X, आपका होमोलोगस क्रोमोसोम एक के पास XH है, एक के पास XC है, और ये दोनों के दोनों गैमीट्स बना लेते हैं, या एक सेकेंड, एक बार दोनों क्रोमोसोम्स आपके डुप्लीकेट्स बना चुके हैं, ये याद रखना, अगर हम मान के चल रहे हैं कि दोनों है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में वो एक तरफ आ गए, राइट, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स फिर उसके उसके अलग होने वाले हैं, राइट, बट वी हैव टू प्रूव कि हमारा XC सिर्फ आएगा, XH नहीं आ रहा, राइट, वी हैव टू प्रूव कि सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस है। इस केस में वी कैन इमेजिन कि मेटाफेज 1 में ही गड़बड़ी हो गई फर्स्ट केस में, बस, लेकिन हमें सेकेंड केस में आर्ग्यू करना है कि कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ आया है, यानी व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज मेटाफेज 2 में गड़बड़ी हुई है, इसीलिए इसके पास XC की 2 कॉपी है। फर्स्ट केस को हमने कैसे जस्टिफाई किया, मेटाफेज 1 में गड़बड़ी हुई,
मेटाफेज 1 में गड़बड़ी होने का मतलब आपके पास XH भी है, XC भी है, एंड दैट इज व्हाई वन हैज बोथ ऑफ देम। मेटाफेज 2 में गड़बड़ी होने का क्या मतलब है? दैट यू विल हैव ओनली वन डिसऑर्डर, बट जो आप में आना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स ओनली इट रिक्वायर्स 2 कॉपीज, बट वो 2 कॉपीज आपके पास कैसे आ गई? बिकॉज यू हैव एक्स सी का डिसजंक्शन एट एक्स सी का 2 डिसजंक्शन हो गया, राइट? सो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन नो, सेकेंड मियोटिक डिवीजन पे आपका चांसेस है ये होने का। लंबा क्वेश्चन हो गया, आई नो, बट क्या करें, राइट? टोटली पॉसिबल एंड इट डज हैपन। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन विच वुड बी एन इजी वन। देखो जेनेटिक्स से क्वेश्चन ना हमेशा टिपिकल तो होंगे, मतलब उसका आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। ओके, इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन अपटेक मतलब टिश्यू कितना यूज कर रहा है, एंड लैक्टेट कॉन्सेंट्रेशन। लैक्टेट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है, यू ऑलरेडी नो, एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में यू डू गिव पायरुवेट, पायरुवेट आपका लैक्टेट बनाता है, राइट? सो लैक्टेट कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड वाज मेजर्ड एट अ 70 kg मेल पर्सन, वेरी गुड, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ही हैड एक्सरसाइज फॉर 4 मिनट्स। तो 0 to 4 मिनट्स, ठीक है, एक्सरसाइज किया, और उसमें जो है उसका 2 चीजें हमने मेजर की, अपटेक कितना ऑक्सीजन वो ले रहा है, और लैक्टेट कितना बन रहा है, ठीक है? द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज करस्पॉन्डेड टू द कंजम्पशन ऑफ 5 लीटर पर आवर, यानी उस जो इंटेंसिटी का एक्सरसाइज हम उससे करा रहे थे उसमें 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए। The person cannot work for 4 minutes at intensities equal to 5 liter oxygen uptake per minimum, as his maximum aerobic capacity is 4.2 liter per minute। तो ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वो 4.2 लीटर्स के ही ले सकता है, तो ही कैन नॉट वर्क फॉर 4 मिनट एट इंटेंसिटीज इक्वल टू 5 लीटर। यह कि ऑक्सीजन वो जो है 4.2 लीटर ही ले पा रहा है, तो अगर हम उसको 5 लीटर पर ऑक्सीजन अपटेक 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट का एक्सरसाइज कराएंगे तो वो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है? क्योंकि उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 4.2 है। व्हाट डू यू थिंक, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन इजी है, क्यों? What are the two types of respiration you can do? You can do aerobic, जिसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया यूज करोगे और ऑक्सीजन यूज करोगे, राइट? और यू कैन डू एनारोबिक। एनारोबिक मतलब नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो ऑक्सीजन, तो बिना ऑक्सीजन यूज किए भी आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो 4.2 इज इट्स एरोबिक कैपेसिटी। दैट डजंट मीन कि भाई वो बिना एरोबिक कैपेसिटी से ज्यादा कर ही नहीं सकता। 4.2 वो एरोबिक से ले लेगा और बाकी उसके ज्यादा भी कर सकता है, राइट? सो दिस बिकम्स अ फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। द रीजन इज कि उससे ज्यादा भी वो ले सकता है। पर्सन हैज एन एरोबिक कैपेसिटी ऑफ 60 ml पर ऑक्सीजन kg मिनट। नाउ आई ऑलवेज से यूनिट्स पर ध्यान दो। अगर आप यूनिट्स पे ध्यान दोगे तो आप ऑटोमेटिकली आंसर सॉल्व कर लोगे। अब आप सोचोगे कि सर हमें क्या पता एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है, राइट? एरोबिक मतलब समथिंग रिलेटेड विद ऑक्सीजन, कैपेसिटी मतलब लेने का कैपेसिटी होता होगा। किसमें है कैपेसिटी? मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर केजी मिनट, यानी कि पर केजी ऑफ इट्स बॉडी वेट एंड पर मिनट। नाउ दे हैव टोल्ड यू इन द लास्ट स्टेटमेंट एरोबिक वर्क कैपेसिटी 4.2 लीटर पर मिनट। उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया एरोबिक कैपेसिटी कैसे निकालना है, कि ये 4.2 है इसका, बट 4.2 लीटर्स है ना, और यहाँ पे 60 पूछा है, तो 4.2 को 4200 ml कर लो। ये ऑलरेडी पर मिनट में है, 4.2 लीटर्स पर मिनट में है, आपको बस पर केजी निकालना है। यानी आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे उसके बॉडी वेट से। बॉडी वेट कितना है? 70, 0 0 कट, 7 6 42, तो योर आंसर वुड बी 60 ml ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट। ज्यादा टिपिकल था? बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो आंसर हो गया ट्रू, है ना? बिल्कुल ये ऐसा कर सकता था और इसने ऐसा ही किया। ओके, नाउ टाइम फॉर अनदर क्वेश्चन, लेट्स मूव अहेड। When the blood lactate exceeds 11 millimoles, ब्लड लैक्टेट लेवल इधर है, और आप देख लो ये है लगभग 11 मिलीमोल्स मान लिया।
Excretion begins through kidneys, which is why its concentration declines. Concentration decline हो रहा है, तो रीजन दिया गया है कि देखो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका किडनीज ब्लड को लैक्टेट को बाहर फेंक रहे हैं। आई हैव टू आर्ग्यू कि हमें पता है कि लैक्टेट को सिंपली हम बाहर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि एरोबिक परसेंट आपको सिर्फ 7% ऑक्सीजन देता है, सॉरी 7% एनर्जी आपको मिलता है एनारोबिक से। लैक्टेट जैसी चीज को बाहर फेंकने का मतलब उस प्रेशियस एनर्जी को बाहर फेंकना है। यू डोंट डू दैट। व्हाट यू डू इज यू टेक दिस लैक्टेट बैक इनटू द ब्लड एंड यहां से उसको देके जाते हो लिवर के पास। लिवर है जादूगर, लिवर करेगा कोरी साइकिल, मैंने आपको बताया था कोरी साइकिल। कोरी साइकिल से इस लैक्टेट को आप दोबारा कन्वर्ट कर देते हो राइट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फिर आपका बॉडी ये यूज करता है। तो जब उसका एरोबिक कैपेसिटी खत्म हो गया, उसके बाद उसका जो ये लैक्टेट था ये इस्तेमाल होने लगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए उसका कंसंट्रेशन डिक्लाइन हो गया, बिकॉज आफ्टर सर्टेन कंसंट्रेशन इसका एक्टिव कन्वर्जन शुरू हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, आई नो ये थोड़ा 30 मिनट का हो गया, बट कोशिश करते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, एक्सेस ऑक्सीजन अपटेक आफ्टर द एंड ऑफ वर्क इज पार्टली ड्यू टू मेटाबॉलिज्म of lactate and not due to gluconeogenesis. Gluconeogenesis के कारण नहीं हो रहा है, it is because of metabolism of lactate and that is absolutely true. इसीलिए कभी कभी बोला जाता है you should work for longer duration to actually cut down fat. क्यों? क्योंकि gluconeogenesis that is breakdown of fat will start a little later. शुरुआत में ये जो एनारोबिक लैक्टेट है हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लैक्टेट मेटाबॉलिज्म जो चालू हो गया है, कोरी साइकिल ने इसको कन्वर्ट कर दिया है कार्बोहाइड्रेट में, उस कार्बोहाइड्रेट्स और उसके डेरिवेटिव्स का हम इस्तेमाल करें। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नया ग्लूकोज बनाना फ्रॉम प्रोटीन्स और फैट्स और अदर सोर्सेस। यहाँ पे ऐसा नहीं, लैक्टेट को हम कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में इनडायरेक्टली, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जाके आगे क्रेब्स साइकिल चलाता है आपका, राइट। तो अभी हम ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करा रहे, हाँ थोड़े टाइम बाद आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस किक इन होगा एंड देन द बॉडी विल स्टार्ट कटिंग डाउन फैट। सो दिस इज एन एंटायरली ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। सो बेटा आज के इस वीडियो में इतना ही। आई नो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग था, एक बार इसको दोबारा देखना, गो थ्रू द लॉजिक पीसेस दैट आई वाज डिस्कसिंग, एंड अगर डाउट्स है यू नो हाउ टू रीच मी, आपको ऑलरेडी पता है आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो, सोना सिंह अनअकैडमी, एंड विल टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। Okay, thank you so much guys. I already told you about the batches, that is premium and golden. Premium for grade 10, golden for grade 9. Thank you so much. Don't forget to like the video, share it with your friends, subscribe करना मत भूलना, and make sure that you click on the bell icon जिससे आपको सारे notifications मिलेंगे, ठीक है। Thank you so much. Bye bye. Take care.